Hello students, once again welcome back in my physics class, and today we will discuss about the lens, right? Lens. Before I start about the lens, we will draw a structure. You have seen this. If this is glass and this is air, it means what? This structure is having two curved surface, and since it is glass, it is transparent, right? And this is your lens. I'm removing it and telling you about the lens is a transparent glass piece bounded by two spherical surface. Transparent glass piece. Students, we are discussing a lens. Lens is a transparent glass, maybe fiber also, but transparent. Transparent glass piece bounded by two curved surface, right? See, मैंने आपको भी बताया था एक कर्व सरफेस ये है, एक कर्व सरफेस ये है, और ये पोर्शन आपका क्या है? दिस इज ग्लास, ट्रांसपेरेंट है, तो मैंने पहले ही कहा ट्रांसपेरेंट ग्लास पीस सराउंडेड बाय टू सरफेस. ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास पीस बाउंडेड बाय, सॉरी सराउंडेड मैंने बोला, बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेस. यस, दिस इज द लेंस. अब मैं यहां से फिर से क्लासिफाई करता हूं लेंस के टाइप्स. समझते चलिएगा. लेंसेज आर ऑफ द टू टाइप्स. थोड़ा सा इसको कम करते हैं यहां से. वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड वन इज कॉनकेव लेंस. Students, one thing. In my previous lectures, you have gone through the mirror, a spherical mirror. And today we are studying lens. What is the difference, main difference between the lens and mirror? Students, with the help of mirror, we can explain what? Reflection. Light falls and returns back in the same medium. That is the reflection. And with the help of lens, we explain refraction. Because of it is transparent medium. Mirror has one polished surface through which light cannot pass. And therefore, it returns back. Right? While your lens is transparent glass piece bounded by two spherical surface. So it is transparent piece and therefore light can pass through it. And when light passes from air to glass, that is from one medium to other medium, the process is refraction. And therefore through lens you can explain the refraction. Students, देखिए अभी आपके पास जो है लेंस का क्लासिफिकेशन मैंने किया. लेंसेज आर ऑफ द टू टाइप्स. मैं डिजाइन बना रहा हूं. ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपका कॉनकेव. डिफरेंस क्या है? मिड पोर्शन पे थिक है. कॉन्वेक्स लेंस मिड पोर्शन पे थिक है और एज पर थिन है. इसका उल्टा है कॉनकेव लेंस में. मिड पोर्शन पे थिन है एंड एज पर थिक है. राइट? बाय टचिंग यू कैन फाइंड, बाय टचिंग you can identify that this is convex lens, this is concave lens. How? By measuring the thickness, by
taking the thickness at the edge and at the midpoint. Here it is thick and at the edge it is thin and it is quite opposite, उसका उल्टा है. ठीक है, लेंस हो गया. अब इस लेंस को और हम डिफाइन कर सकते हैं. इस लेंस को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. देखिए मैं 3 पार्ट बना रहा हूं, केवल आपको जानकारी के लिए लिखूंगा नहीं, सुनिएगा. एक लेंस ये है, ये मतलब इसकी दोनों सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स, इसकी दोनों कॉनकेव. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक कॉन्वेक्स और एक प्लेन. तो ये क्या हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स. The part of this convex lens divided into 3 parts, that is the plano convex. Second, कॉनकेवो कॉन्वेक्स. ये कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स. और तीसरा बाई कॉन्वेक्स. दोनों कॉन्वेक्स, एक कॉन्वेक्स एक प्लेन, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव. और ऐसे इस लेंस को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. देखिए एक तो हमारा ये प्लेनो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉनकेव, एंड जो मेन है वो कौन सा है, बाय कॉनकेव. ठीक है, इसकी आपको जरूरत नहीं है, दैट विल गो थ्रू इन क्लास 12. Therefore, at the level of class 10, you are supposed to know about the 2 types of the lenses, convex lens and concave lens. अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपसे कहूं कि हमने जो डिस्कशन किया है टाइप ऑफ लेंस, 2 टाइप्स ऑफ लेंस बता दिए, उसका क्लासिफिकेशन कर दिया, 3 टाइप्स में ये भी, 3 टाइप्स में ये भी. लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम कहें कि इसकी वर्किंग, लेंस की वर्किंग किस पे बेस्ड है, तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि विद द हेल्प ऑफ मिरर वी कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, while with the help of lens we can explain refraction, right? तो इसका मतलब working of the lens is based on the refraction. Yes, working of the lens is based on the refraction, right? ठीक है, वर्किंग हो गया. अब टॉपिक वाइज डिस्कस करता हूं. एक है ऑप्टिकल सेंटर, इसका मिड पॉइंट, इसको सी से डिनोट कर दे, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर. द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज द ऑप्टिकल सेंटर. और यहां की बात करें तो ये भी इसका ऑप्टिकल सेंटर है. मिड पॉइंट, राइट, मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज द ऑप्टिकल सेंटर, राइट. इसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूं, ये हटा दे रहा हूं पूरा. ठीक है, अब ऑप्टिकल सेंटर के बाद जो आती है प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस देखिए, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस. तो प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, एक लाइन है. हमने आपको मिरर में बताया था ना, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, दोनों में हमने आपको प्रिंसिपल एक्सिस बताई थी. तो वैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइन ड्रा कर रहा हूं मैं, यहां से परपेंडिकुलर ले रहा हूं, निकलती है तो ये क्या होगी, यहां तो परपेंडिकुलर हो सकती है लेकिन यहां परपेंडिकुलर नहीं है. ठीक है, कोई भी लाइन ड्रा करिए तो हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट डिफाइन कर रहे हैं और इसको आप जस्टिफाई करिएगा. ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर. तो एक लाइन जो कि यहां से पास कर रही है, कहां से, इट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ सरफेस, राइट. इसको समझिए, मैं आपको भी बताता हूं.
क्लियर? ये बात समझ में आई नहीं समझ में आई? मैंने आपसे कहा कि दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर एंड लाइन पासिंग थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर, बट कंडीशन क्या है? दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द सरफेस, यानी इस सरफेस, ऐसे कोई सरफेस है तो इस पे परपेंडिकुलर ये लाइन है नहीं, ये है नहीं है, कौन सी परपेंडिकुलर है? इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ये है। तो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, यानी इस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रा करें तो ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसका मतलब दिस इज द परपेंडिकुलर। तो आप वापस आइए, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है हमारा? प्रिंसिपल एक्सिस, और डिफाइन कैसे करेंगे? लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान से सुनिए, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द सरफेस, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। मैं एक और लाइन ट्राई कर रहा हूं, ठीक है? देखता हूं, यहां से ले जाऊं सेंटर से और इसको कहूं ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो क्या ये है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो ये ऑप्टिकल सेंटर से तो पास कर रही है, दिस इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, लेकिन इस सरफेस पर क्या 90 डिग्री है या ये 90 डिग्री है? नहीं, देयरफॉर दिस विल नेवर बी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो दिमाग में बिठा लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस इन द केस ऑफ लेंस इज द लाइन which is passing through the optical center and perpendicular at both surface। यही चीज आप इस कॉनकेव लेंस में भी दिखा सकते हैं। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर और यहां पर ये परपेंडिकुलर है, यहां पे भी परपेंडिकुलर है, कोई दूसरी लाइन ले जाएंगे दैट विल नॉट बी द परपेंडिकुलर, राइट? तो दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ गया? राइट, तो अब हम प्रिंसिपल एक्सिस अपलोड करिए, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद प्रिंसिपल फोकस, राइट? व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस? देखिए, मैं दोनों को बताऊंगा, जैसे मैंने लिया ये आपका, ये क्या है? व्हाट इज दिस? कौन सा है? कॉन्वेक्स, और यहां पर बना रहा हूं, तो दिस इज योर व्हाट? कॉनकेव लेंस। दोनों लेंस है। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? तो सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस, मैं यही ख्याल ले जाऊं या अलग से दिखा दे रहा हूं? ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी है प्रिंसिपल एक्सिस, यानी PA, शॉर्ट में यहां लिखा है प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, राइट? अब मैं कहता हूं प्रिंसिपल फोकस की बात कह रहा हूं, तो फोकस क्या है? एक पॉइंट है। तो देखिए, लाइट रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे जितनी भी लाइट रेज आएंगी, लाइट रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। अगर मिरर होता तो वहां क्या कहते हैं? आफ्टर रिफ्लेक्शन, बट हियर वी विल से आफ्टर रिफ्रैक्शन विल pass through a point on the principal axis, and this point is known as focus, right? अब इसमें लेके चल रहा हूं, किसमें? कॉनकेव लेंस में। लाइट रेज जा रही है, सब पैरेलल है, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? ये देखिए, सारी लाइट रेस क्या हो रही है? दूर हो जा रही हैं, डाइवर्ज कर जा रही हैं, तो ये कहीं मिलेंगी? दे विल नेवर मीट। वी विल, व्हाट वी विल डू?
we will produce them back, and on producing them back they meet at a point on the principal axis and this point is focus. ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस क्या है कि all light rays coming parallel to the principal axis after refraction meet at a point. ये तो डायरेक्ट मीट कर रही है, लेकिन ये अपीयर कर रहा है कि ये मीट कर रही है क्योंकि डाइवर्स हो जा रही है. तो दिस पॉइंट इज द फोकस. सिंपल. All the light rays parallel to the principal axis after refraction meet at a point on the principal axis. That point is the focus. ये प्रिंसिपल फोकस है कॉन्वेक्स लेंस का, और ये प्रिंसिपल फोकस है कॉनकेव लेंस का. राइट. अब देखिए साइन कन्वेंशन को अगर याद करेंगे तो डिस्टेंस कहां से, अच्छा फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज द फोकस. और यहां क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज फोकल लेंथ. राइट. अब साइन कन्वेंशन अगर हम याद करें जो हमने मिरर में बताए थे, और मैं फिर बताऊंगा लेंस में भी आगे, कि डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल, वहां पोल से था, यहां ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे. और लाइट रे लेफ्ट टू राइट जा रही है और ये मेजरमेंट भी लेफ्ट टू राइट है, यानी पॉजिटिव. इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव. और ये क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं, देखिए यहां से इस साइड में फोकस इधर दिखाई दे रहा, तो ये इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसकी फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस की होती है नेगेटिव. राइट. ये डायग्राम बनाइए, इसको नोट करिए, डेफिनेशन नोट करिए, स्टेटमेंट वीडियो को बैक करके पॉज करके नोट करिए और डायग्राम बना लीजिए. फिर मैं इसके आगे की बात करूं. अच्छा, इसके आगे की बात करूं उससे पहले देखिए ये क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, ये ला करके एक पॉइंट पर लाइट को कन्वर्ज कर दे रहा है. कन्वर्ज यानी एक पॉइंट पर मिला रहा. तो इसका मतलब कौन सा लेंस हो गया, दिस इज कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग मतलब डिफरेंट लाइंस, कई लाइंस जो पैरेलल है उनको ले जाके किसी पॉइंट पे मिला देना. ठीक है, नंबर ऑफ लाइट्स को एक पॉइंट पे मिला देना, तो ये कन्वर्जिंग लेंस हो गया. और ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा, दूर कर दे रहा. तो ये क्या हो गया, डाइवर्जिंग लेंस. और कॉन्वेक्स लेंस के इस एक्शन को, जिसमें वो सारी लाइट रेस को एक पॉइंट पे मिला देता है, कन्वर्जिंग एक्शन कहलाता है. क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग. लाइट रेस को एक पॉइंट पे ले जाकर के मिला देना वो कहलाता है कन्वर्जिंग एक्शन, और लाइट रेस को दूर कर देना ये क्या कहलाता है, डाइवर्जिंग एक्शन. राइट. तो अभी आप क्या करिए, इसको बना लीजिए जो मैंने बताया है, स्टेप वाइज सारा नोट कर लीजिए. इसके बाद मैं आपको रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ लेंस बताने जा रहा हूं. वीडियो पॉज करिए. नोट कर लिया. देखिए अब हम बताने जा रहे हैं रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज. किसके केस में, स्फेरिकल लेंस. स्फेरिकल लेंस के केस में, लेंस कहिए या स्फेरिकल, क्योंकि दो सरफेस स्फेरिकल है ना, तो इसलिए इसको हम स्फेरिकल लेंस का भी नाम देते हैं. देखिए पहले क्या कर रहा हूं, मैंने बना लिया ये, और यहां पे बना दिया ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स. और ये कौन सा है,
कॉनकेव, राइट। तो अब जो मैं फर्स्ट रूल बताने जा रहा हूं, पहला रूल है कि लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो मिरर में भी आप पढ़ चुके हैं कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस हो जाएगी, और यहां क्या होगा, लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस। फर्स्ट रूल ये कॉन्वेक्स में, और इसमें देखिए क्या है कि लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अभी तो डाइवर्ज करता है, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे और ये जहां मिलेगा दैट विल बी फोकस। इसका मतलब फर्स्ट रूल हो गया कि जो पैरेलल लाइट आ रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी। यस, राइट। अब हम आपको सेकेंड रूल बताएं, ठीक है। फर्स्ट हो गया, अब आप सेकेंड देखिए, हटा दो इसको, वीडियो पॉज करिएगा, नोट कर लीजिएगा। सेकेंड रूल है हमारा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर। देखिए लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो स्ट्रेट उसी ट्रैक पे चली जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट जाएगी वो स्ट्रेट जाएगी। चाहे इसमें देख लीजिए, ये भी सीधी चली जा रही है, ठीक है, गोइंग स्ट्रेट, राइट। और ये सेकंड रूल हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको थर्ड रूल बताने जा रहे हैं। देखिए, हटा दें, यस, वीडियो पॉज करके नोट कर दीजिएगा। अब थर्ड रूल देखिए आप। थर्ड रूल कहता है कि जैसे ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है, देखिए एक चीज थर्ड रूल बताया उससे पहले, फोकस तो आपको मिल ही गया ना, लाइट रे पैरेलल आई थी, यहां से जा रही थी, ये फोकस है, ठीक है। अब फोकस क्या होता है, आपने पढ़ा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, तो कर्वेचर, इसकी दो कर्व सरफेस है ना, तो इसका कर्वेचर इधर होगा, इसका कर्वेचर इधर होगा, है ना। अब लेंस है तो चाहे इधर से देखिए, इधर से लाइट आएगी तो यहां से जाएगी, और अगर इधर से पैरेलल आ रही है तो यहां से जाएगी तो ये पॉइंट फोकस ही तो होंगे। तो इसका मतलब लेंस के दोनों तरफ फोकस होता है, ठीक है। अब इसको डिटेल में जब हम आगे पढ़ेंगे क्लास 12 में, तो हम आपको फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस के नाम से बताएंगे, लेकिन अभी आप केवल इसको यहां पर फोकस देखिए कि लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाती है। अच्छा, अब अगर लाइट हमारी आ रही है फोकस से, ये फोकस से लाइट आ रही है तो क्या होगा भाई, फोकस इसका ही ले रहे हैं, ये लाइट जा रही यो, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रूल क्या था कि अगर पैरेलल आ रही तो फोकस से जाएगी, और यही अगर फोकस से आ रही है तो इट विल बिकम पैरेलल। यहां देखिए, ये फोकस से आ रही है यहां से, ठीक है, तो क्या होगा, हाँ, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। कैसे जाएगी बताइए, ठीक है। नहीं, फोकस हमारा लाइट लेफ्ट टू राइट आ रही है, और अगर फोकस से जा रही है, देखिए लाइट इस तरीके से, अगर इसमें आपकी फॉल करती है कि फोकस
इस साइड का फोकस है ना, तो लाइट अगर यूं आ रही है, डॉट 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 बनाइए, अगर ये ऐसे लग रहा है कि फोकस से जा रही है, तो अब क्या होगा? बोलिए भाई, जा तो फोकस से रही है ना। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? ऐसे लग रहा है कि फोकस से जा रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये जो डायग्राम था, नहीं, ठीक है, फोकस से जाती हुई, क्योंकि ये डायरेक्ट फोकस से जा ही नहीं सकती इसमें, ठीक है ना, अपीयर करेगी, ये आपको अपीयर करेगी, ये तो फोकस से जाएगी, क्योंकि फोकस इस साइड में है, फोकस से जा रही है। क्यों? क्योंकि इसका फोकस बनता है, इसका फोकस क्या है? बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे बनता है। कॉनकेव लेंस में फोकस बैकवर्ड, लाइट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करने बनता है ना, इसलिए इसका फोकस अपीयर करेगी, फोकस से जा रही है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये 3 रूल्स हैं, इनको फॉलो करके हम अब लेंस की हेल्प से डिफरेंट पोजीशंस में रखे हुए ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनती है, ये डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नोट कर लीजिएगा, बाकायदा वीडियो का जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसको आप फॉलो करिएगा, सुनिएगा और ध्यान से नोट्स बना लीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको अपने आप से नोट्स बन जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।